اللہ نے ساری نعمتیں دے کر اور سارے کمالات دے کر دنیا میں انسان کو آزمایا کہ بندہ اپنی نعمتوں میں پڑ کر کہیں غفلت اور معصیت میں نہ ڈوب جائے، اپنے خالق و مالک اور اپنی نعمت کو دینے والے کو ہی بھول نہ جائے، تو اللہ نے بندے کو دنیا میں آزمایا۔ گویا یہ دنیا ہمارے اور آپ کے لیے آزمائش اور امتحان کی جگہ ہے۔ اب اللہ نے انسان کو تین اعتبار سے، تین انداز میں، تین طرح اللہ نے آزمایا ہے۔ نمبر 1، ایکم اتم عقلا و فہما، کہ دنیا میں نعمتوں میں رہتے ہوئے، عیش اور عشرت میں رہتے ہوئے تم میں کون ایسا ہے کہ جو اپنی فہم، اپنی دانش، اپنی سمجھ اور اپنی بصیرت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ گویا ہر انسان کو آزماتا ہے کہ تم میں کون ہے جو عقل و فہم کے اعتبار سے کامل اور مکمل ہو۔ اور اسی کی تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ ہوش مند، عقل مند، صاحب بصیرت، صاحب دانش وہ ہے جو اپنے آپ پہ نظر رکھتا ہے، اپنے آپ کا جائزہ لیتا ہے، اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے کہ ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا، ہم کس رخ پہ چلنے والے ہیں، کس راستے سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارا طریقہ کیا ہے، ہمارا عمل کیا ہے۔ تو انسان عقل مند وہ ہے، دانش مند وہ ہے، اہل بصیرت وہ ہے جو اپنے آپ پہ نگاہ رکھتا ہے کہ میں اپنے خالق، اپنے مالک کے مطابق میں زندگی گزار رہا ہوں یا نہیں۔ تو اللہ نے ہمیں پہلے نمبر پہ آزمایا، ایکم اتم عقلا و فہما، جس کے تقاضے یہ 5 باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ نمبر 2، ایکم اسرع الی الطاعہ، تم میں کون ہے جو طاعت کی طرف، نیکی کی طرف سبقت کرتا ہو، یعنی ان چیزوں کو تو اپناتا ہو، لیکن اس کے بعد ایکم اسرع الی الطاعہ، تم میں کون ہے کہ نیکی کا موقع اسے ملے، نیکی کی مہلت اسے ملے، نیکی کرنے کا وقت اسے ملے، اس کی طرف سبقت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کیا ٹال مٹول تو نہیں کرتا؟ یاد رکھو، اگر تجھے نیکی کا موقع ملا، تجھے مہلت ملی، تجھے ہم نے سہولت دی، تجھے ہم نے راحت دی، تجھ کو ہم نے موقع دیا، اور تم نے اس موقع سے، اس سہولت سے، اس مہلت سے، اس صحت سے، اس سلامتی سے اگر تم نے فائدہ نہیں اٹھایا، فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، جس طرح پچھلی قوموں کو ہم نے سہولتیں دی، پچھلی قوموں کو راحت دیا، پچھلی قوموں کو موقع دیا، لیکن راحت اور موقع ملنے کے باوجود، صحت، سلامتی اور جوانی ملنے کے باوجود پچھلی قوم کا شیوا تھا، پچھلی قوم کا طریقہ ہو گیا، ارے ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو طاقت و قوت ہے، عمر تو بہت لمبی ہے، بعد میں کر لیں گے، یہی خیال کہ بعد میں کر لیں گے، نیکیوں کے موقع کو چھوڑتے رہے۔ اللہ خود فرماتے فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، ان کا دل پتھر کی طرح سخت ہو گیا۔ اسی بنیاد پر ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے جن جن بندوں کو خاص موقع دیا ہے، انہوں نے اس خاص موقع سے فوراً فائدہ اٹھایا۔ پتہ نہیں یہ موقع دوبارہ ہمیں ملے کہ نہ ملے، فوراً فائدہ اٹھایا۔ اشارہ کرتا چلوں گا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کعبے کا دروازہ اچانک کھلا،
उन्होंने देखा कि अल्लाह ने एक मौका दिया हमें कि काबे का दरवाज़ा अचानक खुला है और मुझे अंदर जाने का मौका मिल सकता है। बस उस मौके से फ़ायदा उठाकर काबे के अंदर पहुँचे और पूरी रात 2 रकत नमाज में पूरे कुरान को ख़त्म कर दिया। एक कीमती मौका मिला था, एक मोहलत मिली थी, काबे का दरवाज़ा खुला था, फिर पता नहीं बाद में हमें ये मौका मिले या ना मिले, लिहाजा जब अंदर गए हैं तो पूरी रात खड़े रहे और 2 ही रकत में पूरे कुरान को ख़त्म किया। जब इंसान मोहलतों से फ़ायदा उठाता है, अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठाता है, इबादत का मौका मिल जाता है, उसका दिल नरम होता है, दिलों में नूर की बारिश होती है, दिलों में रिक्कत आती है। फिर इबादत के बाद इंसान की आंखें डबडबा जाती हैं। वही अबू हनीफा जब निकलने लगे, अब सुबह हो रही है, दरवाज़ा बंद हो सकता है, अब निकलने लगे तो कहते हैं इलाही मा अबदना का हक़ इबादती का, मा अबदना का हक़ इबादती का व मा अरफना का हक़ मारिफती का। ये एक मौके की बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह जब मौका देते हैं, मोहलत देते हैं, तो मौका और मोहलत से फ़ायदा उठाएं। उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने देखा कि काबे में सैलाब आ गया, बारिश बहुत तेज़ हो गई और पूरे काबे के इर्द गिर्द पानी का बहाव हो गया, पानी का सैलाब आ गया। उन्होंने सोचा कि बहुत कीमती मौका है, इस वक्त खाने काबा अल्लाह के तवाफ़ से खाली हो चुका है। ये एक ऐसा लम्हा है जिस लम्हे में तवाफ़ की इबादत नहीं हो पा रही है। ये लम्हे खाने काबा के तवाफ़ से बिल्कुल खाली हो चुके हैं और मैं किनारे खड़ा हूँ। ये एक अजीब सा मौका है, चलो कूद जाओ, जान जाए तो जाए, इस सैलाब में कूद जाओ। उर्वा बिन ज़ुबैर वो अल्लाह के नेक बंदे हैं जिन्होंने मोहलत से, मौका से फ़ायदा उठाते हुए तारीख़ में गवाही है कि उन्होंने पानी के बहाव में खाने काबा का 7 तवाफ़ किया था। ये क्या था? इस बात की अलामत थी कि एक मोहलत मिलती है, उस मोहलत से फ़ायदा उठाया। तो दूसरी आजमाइश, दूसरा इम्तिहान, अय्युकुम असरा इलत्ताह, और उसके बाद तीसरा इम्तिहान बड़ा अजीब है। तीसरा इम्तिहान फरमाते हैं अय्युकुम औरा अनिल मासी, तुम में कौन है, तुम में कौन है जो गुनाहों से अपने आप को बचाता है। मैं अगर नेमत खिला खिला कर, मैं नेमतों की बारिश बरसा कर, मैं रहमतों की छाँव में तुझे चला कर, मैं मीठी मीठी नींद तुझे सुला कर, तुझे मनपसंद खाना खिला कर, मैं देखूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा नफ्स ऐसा मोटा हो जाए कि तू मेरी ही नाफरमानी करने लगे, मेरी ही निगाहों के सामने मेरे नाफरमान बन जाओ। मैं देखूंगा, अभी तुमने अपने हाथों से मीठे मीठे शरबत पिए हैं, अभी तुमने अपने हाथों से मीठे मीठे लुक़मे खाए हैं और चंद मिनट नहीं हुए कि मेरी ही नाफरमानी करते हो। मेरे बंदे, मैं देखता रहूंगा। सुनो, जिस तरह मैं तुझे अपनी नेमतों में रखूंगा, रहमतों में रखूंगा, लेकिन कभी अगर मेरा जलाल आ गया, मैं यामल सुअन युज्ज़बिही, जिसने कोई गुनाह का काम किया और मेरी निगाहे गज़ब और मेरी निगाहे जलाल अगर तुझ पे पड़ गई, तो सुनो, उसी वक्त हम तुझसे बदला ले लेंगे। और बदला अल्लाह कैसे लेता है? बदला अल्लाह कैसे लेता है? अपने गज़ब, अपने जलाल की बुनियाद पर अल्लाह बदला कैसे लेते हैं? 1-2 मिसाल सुनाऊंगा। परवरदिगार हालात को पलट देते हैं, इंसान के ज़ाती हालत को पलट देते हैं, माली हालत को पलट देते हैं, इज्जत व आबरू की हालत को पलट देते हैं, सेहत और सलामती की हालत को अल्लाह पलट देते हैं। इंसान समझता नहीं है कि हमारी पिछली हालत अच्छी, अब ये हालत पलट कर बुरी क्यों हो गई है। तारीख़ की मिसाल है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामला आप जानते हैं कि जब ज़ुलेखा, एक वक्त था कि ज़ुलेखा शाही दरबार में रहती थी और शाही नाज़ व नेमत के साथ रहती थी, गुनाह की दावत भी उसने दी। नतीजा क्या हुआ? लंबी तफसील है। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की इफ़्फ़त,
पाक दामनी, गुनाहों से एहतिराज, गुनाहों से बचना, अपने आप को बचाना, जबकि वहाँ गुनाहों के सारे असबाब आसान थे, सारी चीज़ें मुहैया थी, कोई रुकावट, कोई पकड़ने वाला, कोई देखने वाला ना था, मगर वो अल्लाह देख रहा था जिसने हज़रत यूसुफ को सारी नेमतों से नवाजा था। तो हज़रत यूसुफ की निगाह में अल्लाह की नेमतें, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आप को बचाया और ज़ुलेखा ने दावत दी। वही ज़ुलेखा एक वक्त आया कि शाही दरबार से उसे निकलना पड़ा। एक वक्त आया कि शाही महल के बजाय झोपड़ी के मकान में उसको रहना पड़ा, झोपड़ी की ज़िंदगी उसने गुजारी। और वही यूसुफ अलैहिस्सलाम अब शाही दरबार में आ गए हैं, शाही तख्त पर है। इस इनकलाब को, इस बदलती हुई हालतों को एक दफ़ा बड़े दर्द दिल के साथ, बहुत आहे दिल के साथ, एहसास के साथ ज़ुलेखा ने कहा था, सुब्हानल्लज़ी जअलल मुलूक अबीदा बेमासियतिहिम, पाक है वो ज़ात, बड़े दर्द के साथ कहा था, पाक है वो ज़ात जो पाक ज़ात बादशाहों को और बादशाहों के महल में रहने वालों को गुनाहों की वजह से गुलामी की ज़िंदगी दे देता है, गुलामों की ज़िंदगी दे देता है। वह जालल अबीद मलूका बिताअतिहिम, और जो पहले गुलाम थे उनको अल्लाह बादशाह बना देता है। इससे पता चला कि इंसान अच्छी हालतों में रहता है, गुनाह अगर उससे हो जाता है तो गुनाहों के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी कभी हालात को पलट देते हैं। लिहाजा तीन तरह हमें ख्याल करना है, अपनी अक़ल, अपनी समझ, अपनी दानिश, अपना सेंस, अपनी बसीरत के मुताबिक इन पांच चीज़ों पे निगाह रखनी है कि हम इन पांच चीज़ों में बेहतर से बेहतर हो जाएं। इबादतों में हम सबकत करें, ख़ास तौर पर जबकि अल्लाह ने मोहलत ज़िंदगी अता फरमाई है, और गुनाहों से अपने आप को बचाएं। कभी कभी इंसान गुनाह करता है मगर बुरे माहौल की वजह से उसे एहसास तक नहीं होता कि मैंने कोई गुनाह किया है। जब आँख बंद हो जाती है, कफन पहन लेता है, कब्र की पहली रात में पहुँचता है, फिर पता चलता है मेरी किस गुनाह की वजह से मैं खुदा के अजाब और गैज़ व गज़ब में पड़ा हुआ हूँ।